دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن کریم کی سوریاز میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ جہاں انسانیت آباد تھے 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت اور عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا ہے۔ ان کے پاس بھی قرآن کریم کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ویداس کی صورت میں موجود ہے، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 170 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی ہی نہیں بھیجا گیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک ہی اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہے جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا، تو وہ کون سے پیغمبر ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ ہندو کس نبی کی امت ہے؟ آئیے ان سوالات کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالرز اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے رہے۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک ہی موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، کیونکہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح سلامت ہے، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے کئی بلند بت بنا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی تھی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کا مکل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کی نشان موجود ہے۔ ان سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب ہے اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا، اس کا حکم ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، تاکہ عرب کی زبان جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اوریجنل، اس لیے آدم کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر سبا منہا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کرے تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگوید اور رویش پرانوں میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق، شیطان کا ان
दोनों को बहका कर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। प्रवेश पुराना चैप्टर 427 के अंदर ये तमाम वाक़ियात बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान करीम की सूरह बकरा और इंजील में। मत्ती पुराणों में लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संभवा मनवा यानी आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे को फीमेल यानी शतर व बका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हवा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। का मतलब है अगर इन तीनों दुनिया के सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद है तो इनका सोर्सेज भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए एक कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हजारों साल से पानी के अंदर मौजूद है, जिसका बनाना कोई इत्तेफाक नहीं। तो इसके बाद सबसे अहम सवाल ये है कि इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगम्बर को भेजा गया होगा, इसके बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद नहीं है और न ही हिंदू मजहब किताबों में और न ही कोई और आसमानी किताबों में, मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं, बल्कि दरिया सिंध के पास रहने वाले सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की नस्बत की वजह से धर्म को बिगाड़ कर हिंदू कहलाने जाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। तारीख के हवालों और मजबूत दलाइल से ये पता चलता है कि ये पैब किसी और पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें इन्हें नूह कहा गया है। वेदों में पैगंबर और अजीम शख्सियत के लिए मलूक का लफ्ज कहा गया है, यानी नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी सैलाब वाला मनवा कहकर पुकारा गया है और उनकी किश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़या तफसील से मौजूद है, जिसके कुरान करीम की सूरह उहद में और बुक ऑफ जिन चैप्टर 7 के अंदर भी बयान हुआ है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और बवेश पुराने चैप्टर 427 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया है और ये भी कि इस मनवा को खुदा ने किश्ती बनाकर इसके अंदर जानवरों को सवार करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद ये अजीम तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की जमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज़ नूह संस्कृत जुबान के अंदर भी मौजूद है, इसका मतलब है किश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरबी जुबान के अंदर है। इस दौरान ये विदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही है कि कैसे बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर इंसानियत की शुरुआत होगी। फ्रांस के एक राइटर AJ डबाविस को 40 साल तक बढ़ा और बताया कि तूफान नूह के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन एक सहरा की तरह थी जिसे आबाद किया गया, और खुद वेदास भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके इनके वाक़ियात को बयान कर रही है, जिसका मतलब है हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। और तूफान नूह के बाद जिन वेदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो इस तूफान के बाद हिंदू सरजमीन पर इनके एक बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। इसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी, क्योंकि तारीख के हवालों से हमें ये पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तस्वुर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो कि इराक के सरजमीन को कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम ने यही मुशरिक थी, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और इनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया के ताल्लुकात को या तो बदल दिया था या फिर बहका दिया था और इन्हीं की पूजा करती थी। इसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियाँ भी बनाकर इन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है, इसी तरह लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना दिया। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आग की भी परस्तिश करती है और इसे मुकद्दस मानती है। मगर सबसे अहम
सवाल ये है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर वाज़िह तौर पर एक खुदा और एक पैगम्बर की तालीमात को वाज़िह तौर पर एक खुदा देखकर हिंदू कौम इसका इनकार क्यों करती है, क्यों नहीं मानती कि अल्लाह के वादे के मुताबिक इनकी कौमों के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया, उन्हें भी डर सुनाया गया। इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारक के बारे में जानना होगा, क्योंकि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था। ये लोग इनकार करेंगे, नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका कोई गवाह है। वो फरमाएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देने के नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा की आयत 143 पढ़ी और इसी तरह से हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, यानी दरमियानी उम्मत बनाया, ताकि तुम लोगों पर गवाही रहो और रसूल तुम पर गवाह रहेगा। जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम के भी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगम्बर को तस्लीम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालात तक पहुंचा दे, क्योंकि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया। अब क़यामत तक चूंकि रसूल और पैगम्बर नहीं आने वाला, इसलिए ये काम उम्मत मुस्लिमा के जरिए हवाले किया है, जिससे क़यामत के रोज इससे सवाल किया जाएगा। डॉक्टर ज़ुल्करनैन जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर इसकी बहुत कोशिश की और काफी हद तक अपनी तहकीक से लोगों को अल्लाह के अज़म से मुसलमान किया। इन्हें लॉजिक तौर पर हकीकत पहुँचाने में कामयाब रहे, मगर अफसोस हमारे मुल्क पाकिस्तान ने फ़िरक़ावारियत से भरा दीन इस अंदाज में मौजूद है, जो कि हम पूरी दुनिया में तबलीग के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं, क्योंकि आज का मुसलमान तहकीक के मामले में और अमली मैदान में दुनिया से बहुत पीछे रह चुका है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आ गई है तो सबसे पहले इसे लाइक करें और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आखिर में आपसे फिर से दरख्वास्त है कि वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगी घंटी को भी क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाला नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।